تم لوگ خیریت سے تو ہو نہیں ادھر بولا؟ بس حاجی ملنگے کہاں ہیں؟ وہ جالیوں کے پیچھے کھڑا ہے. کچھ معلوم ہوا کون لوگ تھے وہ؟ فقیر محمد کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فقیرہ؟ تم ٹھیک طور سے پہچانیے ان لوگوں کو ادھر بولا؟ انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی خان. فقیرے کے ساتھ دلہا بھی تھا. یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے خان لالا. وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم یہاں چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں؟ اس کو جواب مل جائے گا اپنی اس حرکت کا. چلو سب لوگ مجھے چلتے ہیں. آج گجرے یا پولیس اسٹیشن خان لالا؟ ان سب باتوں کا فیصلہ وہی ہوگا. آؤ آؤ ملنگی آ جاؤ. چلو آؤ. تم بیٹھتے کیوں نہیں گل محمد؟ میں اس شخص کے بارے میں سوچ رہا ہوں خان لالا. اس نے بڑے کمینے پن کا مظاہرہ کیا ہے. فقیر محمد کچھ دن پہلے میرے پاس آیا تھا اور اس سلسلے میں اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. میں نے اسے سمجھایا تھا اور پھر مجھے اس سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ اس قدر پاگل پن کا مظاہرہ کرے گا. وہ شاید پھر سے کنگال ہو گیا ہے اور بھوکے شخص کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی اور نہ دوسروں کی. ایسے لالچی لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں خان لالا. اب یہ ہماری غیرت کا مسئلہ بن گیا ہے. ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں خان لالا کہ ایسے کمینے شخص سے دشمنی موڑ لینا بھی ہماری توہین ہے. فقیرہ اگر بھوکا ہے تو 10-20 ہزار سے اس کا منہ ہم بند بھی کرا سکتے ہیں. لیکن فقیرے کا منہ پیسوں سے کبھی بھی بند نہیں ہوگا گل محمد. اس کی سینے میں جو آگ مدتوں سے سلگ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں. اب تو تمہیں بھی حفاظت سے رہنا ہوگا اور مجھے بھی. آپ پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کراتے خان جی؟ دن دہاڑے انہوں نے ہم پر فائرنگ کی ہے. سیدھا سادہ 307 کا کیس ہے. موقع واردات کے گواہ موجود ہیں. قانون کے شکنجے سے وہ نہیں نکل سکتا. قانون کا سہارا لے کر میں اپنے دشمن کو اس کی برتری کا احساس نہیں ہونے دوں گا ادھر بلا. اور پھر ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں. اس نے میرے گھر آ کر مجھ پر گولیاں برسائی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم علاقے میں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ دشمنی سے ہمیں کیا ملے گا خان لالا؟ اس کی یہ حالت ہے تو وہ کسی بھی وقت... تمہاری یہ حالت ہے تو تمہیں اس علاقے میں ایک دن بھی عزت کے ساتھ جینا نصیب نہیں ہوگا گل محمد. فقیر محمد نے ہم پر غفلت میں وار کیا ہے. اب ہم بیدار ہو گئے ہیں. اب دیکھیں گے علی. ان باتوں کا کوئی دوسرا حل نہیں نکل سکتا بابا؟ تمہارے پاس ہے کوئی حل؟ اس علاقے میں بہت بڑے بڑے مسئلے جرگے اور مشاورت سے طے ہو جاتے ہیں. آپ اگر کوشش کریں... لیکن اس شخص کی مثال اس ناسور جیسی ہے جس کا علاج موت کے سوا کچھ بھی نہیں. قتل و غارت کے علاوہ اس بات کا کوئی علاج ممکن نہیں تو اس بات کو ختم کر لینا ہی بہتر ہے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کاکا جی کو چاہیے کہ اپنے کنسٹرکشن کے منصوبے کے لیے کسی دوسری جگہ پلاٹ تلاش کرے، اس علاقے سے کہیں دور. واہ، یہ تو تم نے ایسی بات کر ڈالی کہ جیسے تم اس علاقے میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہو. اگر تم اسی طرح سوچتے ہو تو تمہیں یہ وطن چھوڑ کر کہیں اور چلا جانا چاہیے. وطن چھوڑنے کے لیے بھی یہ تیار ہو جائے گا خان لالا، لیکن فقیر محمد کے بھانجے کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. فقیر محمد کا بھانجا یا آپ کا بیٹا؟ کاکا جی، ناصر کے ساتھ میرے تعلق کا پہلا والا یہی تھا کہ اسے میں نے اپنے چاچا کا بیٹا سمجھا تھا. میرے پیچھے رشتوں کا ریکارڈ نہ نکالو علی. اس کی ضرورت تمہیں ہوگی، مجھے نہیں. آج کے بعد اسے یا تو میرے بھائی کے ساتھ چلنا ہوگا یا میرے دشمنوں کے ساتھ. دلیا، تو ناصر کو پتہ چل گیا؟ پتا تو اسے لگنا تھا خان. وہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں تھی اور نہ ہی شیر خان کا گاؤں یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے. انہیں ڈرانے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی تھی اور ہمارے کارتوسوں کے کوکے تو یہاں تک بھی پہنچے ہوں گے.
बैठते क्यों नहीं, खड़े क्यों? मैंने जो कुछ सुना है क्या वो सच है मामा जी? तुम्हें पूछने की जरूरत है? इसका मतलब ये है कि फायरिंग वाला वाकया सच है? आप लोगों ने गांव जाकर गोलियां चलाई हैं? गोलियां ना चलाते तो बंदूकों की नालियां क्यों साफ करते? बंदूकों की नालियां तो साफ हो जाएंगी, लेकिन दिलों की गलियों को कौन साफ करेगा? और उस गली में हमारे दुश्मन के कदम पड़ गए हैं नासिर, और दुश्मन के रास्ते में लोग झाड़ू नहीं लगाते, उसका रास्ता रोकते हैं। दुश्मन तो आप लोगों से बच के निकल गया मामा जी। और अफसोस तो इस बात का है कि मेरा दुश्मन वहां मौजूद न था। तो फिर आपने गोलियां किस पर चलाई? उस फजा में, उस हवा पर जिसके साथ मेरी दुश्मन की सांसें शामिल थी। खान के दिल को एक छोटी सी तसल्ली तो मिली। और इसको इस बात की तसल्ली मिली होगी कि इसका बाप बच के निकल गया। इस एक ख्याल के सहारे तो मैं जिंदा हूं कि मेरे बाप का सर सलामत है। ये तुम कह रहे हो नासिर? तुलिया, मेरे शकूक बजा थे, इसीलिए मैंने से ये बात छुपाई रखी थी। आपके शकूक गलत थे, आपके अंदेशे सरासर गलत हैं। आपका बेटा आपके सिवा दुनिया में किसी दूसरे बाप को मानता ही नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप जिंदा सलामत वापस लौट के आए हैं। सर, बेटा, जंग के मैदान में मौत के लिए तैयार होकर ही जाना पड़ता है। लेकिन खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो आपके खून का बदला मैं किससे लेता? अली से, उसके बाप से, या उस शख्स से जिसका नाम भी मैं अपने खून पे एक धब्बा समझता हूं? बेटा, आपने तो अपने दुश्मन को जाने दिया मामा जी, लेकिन मेरे दोस्तों को मेरा दुश्मन बना के छोड़ा। तुम्हारे दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। जिन लोगों के मुफादात का हर कदम पर तुम्हारे मुफादात के साथ टकराव है, वो तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन अली, उसके मुतालिक मैं कम से कम ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर सकता हूँ मामा जी। नसर, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम अली का साथ छोड़ दो तो फिर? मैं ये मुल्क छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। ये तुम कहते हो नासिर? गैरत और वफादारी का यही तकाजा है मामा जी, और ये सब बातें मैं आप ही से सीख चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो अली। शुक्रिया। ये आप लोग कहाँ गायब हो गए थे? मैं इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे खुद इस बात का एहसास है जी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं। दरअसल हम गांव गए थे और गांव से आकर सीधा आपके यहाँ हाजिर हुए। खैरियत तो है ना? गुल साहब भी? जी हाँ, ये चंद दिन मैंने उन्हीं के साथ गांव में गुजारे हैं। वो तो कल वापस आए हैं। नाज़ी कह रही थी कि गांव में अंकल गुल का किसी के साथ झगड़ा फसाद हो गया। हाँ, बात कुछ ऐसी थी, लेकिन शुक्र है फसाद होते होते रह गया। दरअसल गुल साहब गाँव में कुछ कंसेशन कराना चाहते हैं और हमारे दूर के रिश्तेदार उनके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। और इस किस्म के तनाज़े और लड़ाई झगड़े तो देहाती जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन अंकल गुल तो दिन रात देहात के लोगों और वहाँ की जिंदगी के खिलाफ हमें लेक्चर देते रहते हैं, और खुद अपने आप को वहाँ इतना इन्वॉल्व किया हुआ है। हमारी जिंदगी एक दायरे की शक्ल में उस एक नुक्ते और मरकज के गिर्द घूमती रहती है जहाँ से हमारा आगाज होता है। उस दायरे का मुहित जितना भी फैल जाए, लेकिन अपने मरकज के साथ इसका राब्ता कभी नहीं टूटता। गुल साहब अगर गांव में रहना नहीं चाहते तो फिर वो वहाँ कंस्ट्रक्शन किस सिलसिले में करना चाहते हैं? उनके बहुत बड़े मंसूबे हैं जी। हमारे मंसूबे के सिलसिले में आप कहाँ तक पहुँचे हैं अली? इसी सिलसिले में तो मैं माजरत के लिए आया हूँ। थोड़ी सी डिले हो गई। मैं सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत चाहता हूँ, फिर मेरी तरफ से आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक, ऐसी कोई जल्दी नहीं। फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ, मुझे वापस गाँव जाना है। ठीक, एक हफ्ते के बाद दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। खुदा हाफिज़।
ہماری زندگی ایک دائرے کی شکل میں اس ایک نقطے اور مرکز کے گرد گھومتی رہتی ہے جہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے. اس دائرے کا محیط جتنا بھی پھیل جائے لیکن اپنے مرکز کے ساتھ اس کا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا. تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے لیے مسئلہ مت بناؤ آفتاب. علی کی حیثیت تمہاری فارم میں ایک ملازم جیسی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں. آپ جو بھی کہیں لیکن بیگم صاحبہ کے گھر اس کا نہ جانا مجھے بالکل پسند نہیں. ان لوگوں نے اسے بہت زیادہ لفٹ دے دی ہے. لیکن وہ تو تمہارے پاپا کے کہنے پر وہاں جاتا ہے اور تمہارے پاپا کے کہنے پر ہی بیگم صاحبہ نے اپنی پلازا کا پلان اس کے حوالے کیا ہے. پتہ نہیں پاپا نے کیا سمجھ کر اتنی بڑی بلڈنگ کی پلاننگ ایک معمولی اور نا تجربے کار آرکیٹیکٹ کے حوالے کر دی. یہ سارا کام تمہاری فارم کی نگرانی میں ہوگا اور تمہارے پاپا اپنے کاموں کو بہتر سمجھتے ہیں. بہتر یہی ہوگا پاپا مجھے فارغ کر دیں. السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام. تم ابھی تک اپنے آفس نہیں گئے آفتاب؟ یہ آپ سے ناراض ہے. مجھ سے تو ساری دنیا ناراض ہے. اسے پھر کیا تکلیف ہونے لگی ہے؟ پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن تمہارے بیٹے کو علی ایک آنکھ نہیں باتا. انسان کو ہر بھلی چیز میں برائی ہی برائی نظر آنے لگے تو یہ صرف اس کی آنکھوں ہی کا قصور ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ نے اس بےہودہ شخص کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رکھی ہے. مجھے ہر شخص کی امپورٹنس کی تمیز ہے آفتاب، اور تم جیسے بےہودہ اور بیکار مخلوق سمجھتے ہو وہ میری نظروں میں ایک انتہائی سلجھا ہوا اور معقول نوجوان ہے. تم اسے آخر سمجھتے کیا؟ اپنی فرم کا ایک ادنا ملازم. لیکن تم یہ کیوں بھولتے ہو آفتاب کہ وہ ادنا ملازم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ تمہارے باپ کے سگے بھائی کا بیٹا بھی ہے. وہ کسی طرح بھی تم سے کمتر نہیں. آپ کے لیے وہ جیسا بھی ہے لیکن میں اسے اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. تمہارے سمجھنے اور نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آفتاب. میں نے اسے تمہارا بازو سمجھ کر اپنے پاس رکھا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر گاؤں میں میرے دشمنوں کو للکارا. آپ اجازت دیں تو گاؤں جا کر آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں نمٹ لوں گا. نہیں بیٹا نہیں. نو، میں نے تمہیں گاؤں کے ماحول سے دور رکھا ہے اور میں تمہیں وہاں کے بکھیڑوں سے بھی دور رکھنا چاہتا ہوں. میں تمہیں ان لوگوں کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا ہوں جو میرے خون کے پیاسے ہیں. تو تمہیں حالات کا پتہ چل گیا ہے ناصر؟ ہاں اس دن، اور اسی دن سے میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہاں بھاگ جاؤں. بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا ناصر. ہمیں حالات کو فیس کرنا ہوگا، کچھ حل نکالنا ہوگا ان کرائسس کا. اس ماحول میں تو میرا دم گھٹ رہا ہے علی. یہاں تو ایک پل کے لیے ٹھہرنا بھی میرے لیے مشکل ہے، لیکن صرف اس شخص کی فکر میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے جس کا میرے سوائے اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. السلام علیکم ماما جی. ماما جی علی نے آپ کو سلام کیا ہے. میرے کان بہرے نہیں ہیں. مہمان کے ساتھ مسافہ بھی کرنا پڑے گا اور ٹھسے بھی ملانی ہوگی، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ٹھسے ملانے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی. آپ تو ہمارے بزرگ ہیں جی، ہمارے بڑے ہیں. اور تمہارے بڑے میرے دشمن ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے منت کی جھولی پھیلانے آیا ہوں ماما جی. منت کی جھولی؟ اور میں خالی جھولی لے کر یہاں سے نہیں جاؤں گا. تمہارے باپ کے ساتھ تو میری دشمنی نہیں تھی علی. اور جس شخص کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی 20 برس تک آپ اسے بے فکر اور بے خبر پڑے رہے. میں اس لیے بے فکر تھا کہ وہ میرے نظروں سے غائب تھا. میرے دشمن کو اس گاؤں میں آنے کی ہمت بھی نہیں تھی جس میں میں رہتا تھا. اور اب میں اس گاؤں سے نکلا ہوں تو وہ میرے قبر پر اپنے لیے محل بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں. لیکن تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے. لیکن میں آپ سے کچھ صلح اور مصالحت کا حل مانگنے آیا ہوں ماما جی. تمہارے چچا کے ساتھ صلح کی بات تو میری موت ہی کرا سکتی ہے. البتہ شیلالہ کے ساتھ بات ایک صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی صرف تمہاری خاطر. کون سی صورت ماما جی؟ یا تو گل محمد اس گاؤں میں آباد ہونے کا خیال ترک کر دے،
और अगर तुम्हारा बाप इस बात पे अड़ रहा तो ठीक है, मैं भी नासर का हक मांग लूंगा। मेरा हक? अपनी गैरत का गला खोंड कर मैं गुल मोहम्मद से तुम्हारी अमानत छीन लेना चाहता हूं। मेरी अमानत? हाँ, तुम्हारी माँ की हकमेर की 50 जरीब जमीन। सावन आए ओ सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। और लड़के, आज तो तुमने बड़ी तैयारियां शुरू की है। तुम तो बड़े जेंटलमैन लगते हो। लैंग्वेज प्लीज। जेंटलमैन नहीं, जेंटलमैन। वैसे आपकी मालूमात काफी ज्यादा है। वो कैसे? ये जेंटलमैन लव्स मेरी पर्सनालिटी के साथ खूब जचता है। और आपको तो पता है कि मेरा ताल्लुक जेंट्री क्लास से। तुम जो कुछ भी हो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना वकार अली शाह। विकी प्लीज, आप अपनी बात जारी रखें। देखो बेटा, बात यह है कि तुम जहां भी जाओ, लेकिन अपने आप को भूलने की कोशिश ना करो। भूलने की कौन सी बात अंकल से? मैं तो हमेशा अपना ख्याल रखता हूं। अपनी सारी तनख्वाह अपनी इज्जत पर खर्च करता हूं। आदमी को अपनी चादर के साथ पांव फैलाने चाहिए। चादर? और मैंने कभी चादर यूज किया है? पता नहीं तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले की सोचता हूं। अपनी तनख्वाह को इस बेदर्दी से खर्च ना करो। कुछ अपनी शादी ब्याह के लिए भी पसंदाज करना है या नहीं? शादी ब्याह? तुम्हारे चचा जब यहां आए थे तो उसने मुझे सब कुछ बताया था। क्या बताया था उसने? छुपाने की कोशिश न करो, मैं सब जानता हूं। उसकी बेटी तुम्हारी मंगेतर है। मेरी मंगेतर? समीना बेटी, ये तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? इधर दोपहर हो रही है और सुबह से तुमने थोड़े से दाने भी साफ नहीं किए। किस सोच में पड़ गए वकार अली शाह? ये बैकवर्ड की सोच मुझे तबाह करके छोड़ेगी। वो आउट ऑफ डेट दुनिया मुझसे बहुत पीछे रह गई है और मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। कहां निकल गए हो? आप तो जानते हैं कि मेरे ताल्लुकात अब अंकल अलाउद्दीन जैसे लोगों से हैं। एक्सीडेंट सर। तुम कहां थे? एन उसी जगह जहां पर ये वाकया ज़रूर पजीर है। तुम्हारा ध्यान किधर था? तुमने मुझे आते हुए नहीं देखा? इत्तेफाकात है जमाने के, मैं तो अपने ख्यालात में गुम। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। आज तो तुम्हारी छुट्टी का दिन होगा। हाँ मेरा आप है, लेकिन मेरी जाती मसरूफियात तो है ना सर। बड़े मसरूफ आदमी मालूम होते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आपके लिए मैं अपनी तमाम एंगेजमेंट्स छोड़ सकता। आप पर तो मैं अपनी जिंदगी भी निछावर कर सकता।
ओह, अपनी जिंदगी? अपनी जिंदगी, अपनी जात, अपना जिगर, अपना हार्ट। एंड व्हाट नॉट, मेरे ख्याल में ये तमाम बातें फजूल है। सर, ये मैं पूरे खुलूस दिल से कह रहा हूँ। खुलूस जज्बाती मखलूक का सबसे बेकार असलिया है मिस्टर। जज्बाती लोग मेरी तरह हमेशा इन घरों में सूने पड़े रहते हैं। डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। आपकी मूड में तो अचानक तब्दीली आ गई है एडी। हाँ, आज तुमने मुझे एडी कहा, कल को तुम मुझे इलाउद्दीन कहकर पुकारोगे। देखो मिस्टर, मेरे साथ इतना फ्रैंक होने की कोशिश मत करो। सर, मैं आपके साथ करीब आने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें मालूम है मैं हर एक के साथ एक फासले पर रहना पसंद करता हूँ, और मैं इंसानों के दरमियान हर किस्म के फासले मिटाने की फिक्र में हूँ। कुदरत के बनाए हुए फासले ना तो तुम मिटा सकते हो, ना मैं। शायद आपने कोशिश नहीं की होगी सर। कोशिश की बात होती तो मैं कैलिफोर्निया को उठाकर यहाँ पाकिस्तान में फेंक देता और जेबी को वहां से उठाकर यहाँ ले आता। जेबी? कम ऑन, कम ऑन। अच्छा हुआ तुम्हारे सवात जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए। थोड़ा और भी डिले हो जाए तो मुझे खुशी होगी। हाँ, तुम्हारा तो घर से बाहर निकलना भी K2 की चोटी सर करने के बराबर है। भैया, हम स्नोफॉल एंजॉय करने जा रहे हैं। बर्फ पिघल जाएगी तो फिर क्या मजा रहेगा सवार जाने का। लेकिन तुम तो खुद एक बर्फ की सिल की मानंद हो। नहीं, अपनी अपनी नेचर की बात है। आखिर दुनिया की रौनकों और हंगामों से तुम इतनी बेजार क्यों ज़ेबी? ये मुसलसल तन्हाई और खामोशी, इसमें तुम्हारा दम नहीं घुटता? इस माहौल से मैं मायूस हो चुकी हूँ नाज। मैं अगर चाहूँ भी तो मेरा ख्याल है मम्मी आ गई हैं। ठीक है, मैं उनके साथ प्रोग्राम फाइनल कर लूंगी। लेकिन तुमने तो अभी चाय की प्याले को हाथ भी नहीं लगाया। शायद मैं गलत मौके पर पहुंचा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारे साथ बैठे, मम्मी बाजार तक गई हैं, बस थोड़ी देर में आने ही वाली हैं। आप प्लीज बैठें। शुक्रिया। वैसे इस वक्त आने की मुझे यकीनन हैरत हुई है। मैं जानता हूँ, मेरे गांव जाने का प्रोग्राम था, लेकिन गुल साहब के साथ पर मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। वो खुद गांव चले गए और मुझे बेगम साहिबा से बातचीत करने का मौका मिल गया। बस वो आने ही वाली हैं। मेरे ख्याल से भी आप लोग अपनी बातें करें, मैं अब चलती हूँ। हमारी बातें तुम्हारे सामने भी हो सकती हैं। वो मेरे इंटरेस्ट की बातें नहीं। अब मुझे चलना चाहिए ज़ेबी। लेकिन तुम तो पूरा दिन गुजारने के लिए आई थी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मेरा ख्याल है मैं तुम दोनों ही कंपनी में मुखिल होना नहीं चाहता। मैं किसी दूसरे वक्त आ जाऊंगा। वैसे भी गुल साहब ने कुछ प्रॉब्लम्स मेरे हवाले किए हैं, मैं उनसे निपट लूंगा। आप अपनी चाय तो पिए। नो थैंक यू जी, खुदा हाफिज। तुम तो अपनी चाय पियो नाजी। तुम बैठते क्यों नहीं सिफतुल्ला? आप खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ सकता हूं जनाब। तुम्हारे यहाँ आने से तो मेरी ये हालत हो रही है कि मेरे कदम जमीन पर नहीं रुकते। खुशी से पागल हो रहा हूं। बड़ी मेहरबानी साहब, मैं तो आपका एक मामूली खादिम हूं। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने मरहूम भाई का चेहरा नजर आता है, गुजरे हुए दिनों की हिकायात, आने वाली खुशियों के पैगामात एंड व्हाट नॉट। मैं भी दुनिया की नजरों से छुप छुपा कर आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके साथ मसलिहत की चंद बातें हो जाए। दुनिया की नजरों से छुप छुपा कर, यानी कि बेगम साहबा से भी पूछे बगैर?
बेगम साहब और आपके दरमियान जो दीवारें खड़ी हैं मैं उन्हें गिराना चाहता हूं। वो दीवारें बेगम साहिबा ने खुद खड़ी कर दी हैं और उनको गिराने का मेरे पास कोई हल नहीं है। इसका तरीका बड़ा आसान है साहब। तुम्हें आसान नजर आता है और मुझे आसमान, और आसमान तक चढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आसमान तक चढ़ने का रास्ता ढूंढने के लिए जमीन की तरफ सर झुकाना पड़ेगा साहब। गर्दन उठाकर चलोगे तो जमीन तक भी आपकी रसाई नहीं होगी। बड़ी फलसफियाना बात की है तुमने सिफतुल्लाह। बैठो। हम तो हर बात अपने तजुर्बे की रोशनी में करते हैं ना साहब, और मेरा तजुर्बा यही कहता है कि बेगम साहब और आपके दरमियान नफरतें फैलाने वाले आपके दुश्मन हैं। हमारे दुश्मन? आपके दोस्त भी हो सकते हैं। हमारे तो सिफतुल्लाह, तुम्हारी बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मतलब की बात करो। मतलब की बात यही है साहब कि बेगम साहबा आपके बड़े भाई की बीवी है और आपसे उम्र में छोटी भी हैं, फिर भी उसका मुकाम बड़ी बहन का है। और अल्लाह गवाह है साहब कि वो आपको दिल से बेहद पसंद करती हैं। हमें पसंद करती हैं? एक बेसहारा बेवा बहन की तसल्ली की खातिर अगर आपको उनके घर जाना पड़े तो आपका कुछ नहीं जाएगा और उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ, वो जाना तो मुझे वैसे भी है वहां सिफतुल्लाह, इसलिए कि मेरे बच्चे की कॉल आई है। आने वाले जुम्मे मेरा बदर यहां आने वाला है। बदर आ रहा है? मुबारक हो साहब, मुबारक हो। मैं अभी जाकर बेगम साहबा को ये खुशखबरी सुनाता हूं। सिफतुल्लाह, एक मिनट, ये रखो, ये तुम्हारा इनाम। लेकिन अभी तुमने उनको बताना नहीं है, इसलिए कि ये खुशखबरी मैं खुद उन्हें देना चाहता हूं सरप्राइज की शक्ल में। हाँ, वो जेम कहां गायब हो गया है? ओ खैर, सॉरी। हमारे लिए तो अब यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया है। फकीरे के खौफ से अब हम अपने घर में भी बंदूकों के साए में जिंदगी गुजारेंगे। फकीरे के खौफ से अब हम अपना गांव तो नहीं छोड़ सकते। अब तो हम खुलकर उसका मुकाबला करेंगे। मैं तो चाहता हूं खान लाला के अपना काम कुछ अरसे के लिए बंद कर दूं। वैसे भी ये लड़ाई झगड़े हमें बहुत महंगे पड़ेंगे। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। ये सब कुछ तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था गुल मोहम्मद। तुम पीछे हट सकते हो लेकिन मैं नहीं। अब तो सारी दुनिया को खबर हो गई है। फकीरे के सामने हथियार डालकर इलाके में हमारी साख मिट्टी भी मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं रुपया आपके पास छोड़ जाता हूं और मेरा एक कारिंदा भी आपके पास रहेगा। बाकी आप जाने और आपका काम। तुम बेफिक्र रहो, हम अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा खान लाला, मैं वापस तो जा रहा हूं लेकिन मुझे जमीन के कागजात अभी तक नहीं मिले। इसकी जरूरत महसूस करते हो? पहले तो मुझे इन बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन अब सोचता हूं खान लाला के जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। इस गांव में फकीरे की तरह बिरादरी में मेरे और भी दावेदार पैदा हो सकते हैं। तुम्हारे कागजात मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं, मेरी अलमारी में पड़े हैं। बोले जाके ले आओ। कागजात के बारे में मेरी तशवीश सिर्फ इतनी है खान लाला के फकीरा अगर हमारे खिलाफ बंदूक उठा सकता है तो कचहरी जाकर भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने में देर नहीं करेगा। हाँ, वो सब कुछ मैं जानता हूं।
ये समझ बैठे हैं कि फकीर मोहम्मद ने वहां जाकर चंद गोलियां चलाई और फिर आराम से बैठ गया। और मुझे नासिर की तरफ से जवाब का इंतजार है, फिर देखूंगा इन लोगों के साथ। सारी मुसीबत तो ये है खान कि नासिर खान शर फसाद से किनारा करता है। वो शर फसाद से भी डरता है और अली का साथ छोड़ने को भी तैयार नहीं। तो फिर उसकी ज़बानी गुल मोहम्मद को यह पैगाम पहुंचाने से क्यों कतराता है? मैंने तो दोनों के सामने ये बात की थी। बड़े पते की बात है खान, लेकिन पता नहीं नासिर खान के दिल में क्या है। मैंने तो महज इसके खातिर जमीन का मुतालबा किया है, और अगर ये मेरा साथ देना नहीं चाहता तो मुझे अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के और भी तरीके आते हैं। अगर आप उन लोगों से सिर्फ मेरे लिए जायदाद का मुतालबा करते तो मुझे नहीं चाहिए वो जायदाद। उस जमीन का हर टुकड़ा मेरे लिए दोज़ख का टुकड़ा है मामा जी। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी थकते हुए अंगारों के ऊपर चलकर गुजारी है बेटा। अब मेरे दुश्मन इस बुझी हुई आग को फिर से परताने के मंसूबे बना रहे हैं। मेरे सीने में लगी हुई आग कैसे बुझेगी, कैसे बुझेगी ये आग? ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आज ही जाकर शेर काका जी से बात करता हूँ। मोहम्मद ने मुझे चलाने के लिए मेरे गांव में पेट्रोल पंप लगाने का मंसूबा बनाया है, और मैं उसे चलाने की खातिर उससे उसकी जायदाद छीन लूंगा। फकीर मोहम्मद खुद को बड़ा उसूल परस्त और गैरत वाला समझता है, लेकिन अब लगता है कि उसकी गैरत की रस्सी ढीली पड़ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक गैरतमंद इंसान है काका जी। ऐसा ना होता तो वो इतना अरसा मेरी माँ का हक दूसरों के हाथों में क्यों छोड़ देता? लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि जब भूखा और खलाश था तो उस वक्त उसे जमीन की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। अब जब उसकी हालत सुधर गई है तो जमीन का मुतालबा करने लगा है। काका जी, अगर आप अपने भाई को गांव में कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन न देते तो मामा जी कभी भी अपनी बहन का हक उनसे नहीं मांगते। ताज्जुब की बात है, भाई मेरी अपनी जमीन थी, मेरी मर्जी, मैं उसमें से किसी को भी दूं, उससे किसी को क्या काम? आपने अपनी जायदाद मुफ्त में दी थी काका जी, और हम उनसे उसकी कीमत वसूल करना चाहते हैं। यह जबरदस्ती है, झगड़े वाली बात है। काका जी, अगर आप इस झगड़े को दबाना चाहते हैं तो सुलह और अमन की यही एक सूरत है। अगर इससे बात बनती है तो आपको क्या एतराज है इस पर? भाई ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, गुल मोहम्मद के पास जाकर बात करता हूँ। आप खुद जाएंगे? मैं खुद जाऊं या इंटरपोल के जरिए पैगाम पहुंचा दूंगा? मामा जी ने तो इसके बारे में अली से भी बात की थी। हाँ, अली को उस वक्त मैंने मना किया था। आप बैठते क्यों नहीं? मम्मी के जागने का टाइम हो चुका है, बस थोड़ी देर में ही आने वाली हैं। वो अभी तक? मेरा मतलब है उनकी तबीयत ठीक तो है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें देर से सोने की आदत है, जाहिर है जागने में भी देर लगेगी। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं। आज मैं पूरा मंसूबा लेकर आया हूँ। मैंने बिल्डिंग का प्लान फाइनल कर दिया। इतनी जल्दी? इस प्लान में मैंने जाती दिलचस्पी से काम लिया है। अपने मेरे दो साथियों की मदद भी इसमें शामिल है। इस काम में आपकी जाती दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है? वजह तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है मैं किसी की जात से इम्प्रेस्ड हूँ। किसकी जात? बेगम साहिबा की शख्सियत, उनकी मोहब्बत, उनका हौसला। इन तमाम बातों के साथ आपका क्या ताल्लुक? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाज बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें महसूस तो किया जाता है लेकिन बयान नहीं किया जा सकता। मेरी माँ भी तुम्हें बहुत चाहती है अली। इसको मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। आपकी खुशकिस्मती में एक चाय की प्याली को भी दखल हो सकता है। हो श्योर, लेकिन बास चीजों को मैं अपनी किस्मत के कोटे में महफूज करना चाहता हूँ।
आने वाले लम्हों के लिए सेबी। गुजरने वाले लम्हों की भी कोई कीमत होती है? जरूर, लेकिन इस वक्त जिस काम की गर्ज से मैं आया हूं उसके जरूरी पॉइंट्स में तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम बेगम साहबा से कह दो मेरी तरफ से काम बिल्कुल कंप्लीट है। आप उनसे खुद बात करें, इन बातों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं? लेकिन ये प्लाजा, ये बिल्डिंग सब तो तुम्हारे ही लिए है जेबी। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें, इन सब से मुझे नफरत है अली, नफरत है। वो क्यों? इन सब के सामने खुद को इंसान बहुत छोटा महसूस करता है। अब देखिए हमारा घर कितना बड़ा है, लेकिन इसकी वुसअतों को देखकर मैं खुद को कितना तन्हा समझती हूँ, कितनी अकेली। मुझे यूं लगता है जैसे मैं एक सुनसान वीराने में ठहरी हुई हूँ। जेबी, हम सब एक ऐसे जंगल में बसे पर मजबूर हैं जो दूर से हसीन और दिलफरेब मनाजर और नज़र करीब से सीनिक ब्यूटी की दावत देते हैं, लेकिन अंदर जाकर उसमें रूह लरस जाती है। ऐसा क्यों है अली, ऐसा क्यों है? ये इसलिए कि हमारी जिंदगी डबल स्टैंडर्ड पर चल रही है। इस दोहरे मयार और गैर फितरी बढ़ाई के एहसास ने जिंदगी को हमारे लिए मुसलसल एक अजाब बना के रखा है। हम बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और। हमारे चेहरे कुछ और होते हैं और दिल कुछ और। इस बड़ी हवेली में सिर्फ मैं हूं और मेरी माँ। बाकी तमाम दुनिया मेरे लिए अजनबी है, बिल्कुल अजनबी। इस अजनबी जहां में भी कोई ऐसा होगा जो तुम्हें अपना समझता है जेबी। मेरे ख्याल में आप पुरानी यादों में खो गए हैं। हाँ जी, हर नई बात के साथ मेरी आंखों के सामने पुराने जमाने आ खड़े हो जाते हैं और बीते हुए दिनों की यादों के साथ भूले बिसरे गीत याद आ जाते हैं। वैसे सर, इन पुराने गीतों में अब क्या रखा है? सब कुछ है, बल्कि बहुत कुछ। बीते हुए मौसमों का निखार, उजड़ी हुई जवानी की बहार है, फितरत की रंगीनियों में झूमते हुए लम्हात, खामोश निगाहों की मौसीकी पर रक्स करती हुई कायनात, एंड व्हाट नॉट। आप बहुत डीप चले गए सर, वापस आ जाइए। हाँ, मैं वो तुम्हारी बात की तरफ वापस आ रहा हूं। आप किसी नई बात का जिक्र कर रहे थे। वो बदर की वापसी का प्रोग्राम फाइनल हो चुका है। वो अपनी माँ के साथ 15 तारीख को यहां आ रहा है। कैसा अजीब इत्तेफाक है। नाजी ने कल रात ख्वाब देखा था कि बदर वापस आ रहा है और उसका ख्वाब आनन फानन सच साबित हो गया। नाजी ने ख्वाब में देखा है? जी हाँ। जीएम जी, ये तो तुमने मुझे तशवीश में डाल दिया। तशवीश किस बात की सर? ख्वाब की ताबीर अक्सर उल्टी होती है। ऐसा ना हो कहीं मेरा बेटा अपना इरादा ना तब्दील कर ले। नहीं सर, बदर आएगा और जरूर आएगा, और मैं अभी से आपको इनवाइट करता हूं। उसके आने की खुशी में सबसे पहला फंक्शन मैं अपने घर में अरेंज करूंगा। ये हम सबकी ख्वाहिश है सर। लेकिन हमारा इरादा कुछ और है जी। वो क्या सर? मैं बदर को एयरपोर्ट से लेकर सीधा बेगम साहबा के यहाँ